امن کے لیے بات چیت ضروری، کل عدم ٹی ٹی پی کے کچھ گروپوں سے رابطے میں ہیں، غیر مسلح کرنے کے لیے مذاکرات ہو سکتے ہیں، مذاکرات میں افغان طالبان ثالث کا کردار ادا کر سکتے ہیں، وزیر اعظم عمران خان کا ٹی آر ٹی ورلڈ کو انٹرویو۔ ریاست کی پالیسیاں ایک مخصوص پس منظر میں بنتی ہیں۔ کالعدم ٹی ٹی پی کے مختلف گروپوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو پاکستان کے ساتھ اپنی وفا کا عہد نبھانا چاہتے ہیں۔ ہمارا ماننا ہے کہ ایسے لوگوں کو ریاست موقع دے کہ وہ زندگی کے دھارے میں واپس آ سکیں۔ وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین۔ پاکستان افغانستان میں دیرپا امن کا خواہاں، چاہتے ہیں کہ افغان عوام کی امنگوں کے مطابق نمائندہ حکومت قائم ہو۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت افغانستان کی صورتحال پر جائزہ اجلاس۔ 12.5 ملین گھرانے، اس کے لیے ہم اب اکتوبر سے ڈائریکٹ سبسڈی دیں گے، آٹے کے لیے دیں گے، گھی کے لیے دیں گے، چینی کے لیے دیں گے، دالوں کے لیے دیں گے۔ مہنگائی پر قابو پانے کے لیے حکومت کا بڑا فیصلہ، آٹے، چینی، دالوں اور گھی پر براہ راست سبسڈی کا اعلان۔ 20 کلو آٹے کا تھیلا 1100 روپے میں ملے گا۔ خوردنی تیل پر سیلز ٹیکس کی شرح میں 44% کمی، چینی 90 روپے فی کلو فروخت ہوگی۔ قیمتوں میں استحکام کے لیے گراں فروشوں کے خلاف بھرپور کارروائی ہوگی۔ پیپلز پارٹی کی نااہلی کی وجہ سے سندھ میں گندم مہنگی ہوئی۔ وزیر خزانہ شوکت ترین اور وزیر مملکت برائے اطلاعات فاروق حبیب کی میڈیا سے گفتگو۔ ایف بی آر نے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کا کامیاب اجرا کر دیا، محصولات میں اضافہ، جعل سازی کا خاتمہ اور ملکی معیشت ڈیجیٹائز ہوگی۔ مستحکم معیشت اور روزگار کے لیے ہماری توجہ کا مرکز کاروبار دوست پالیسیاں ہیں، ویلیو ایڈیشن کے لیے جدید ٹیکنالوجی کو اپنانا ہوگا، وزیر اعظم عمران خان۔ مالی بے ضابطگیوں کے خاتمے کے لیے حکومتی اداروں میں مالیاتی نظم و ضبط یقینی بنانا ہوگا۔ کرپشن کے خاتمے کے لیے ڈیجیٹل آڈٹ ناگزیر ہے۔ ریٹائرڈ سرکاری ملازمین کو پینشن کی وصولی میں مزید سہولت دی جائے، صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کی آڈیٹر جنرل آف پاکستان کو ہدایت۔ کابل سے انخلا میں پاکستان کا اہم کردار، خطے اور افغانستان میں امن کے لیے پاکستان نے مکمل ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، ڈینش وزیر خارجہ یہ کہ وہ امریکی سینٹ میں مجوزہ بل کے اثرات کو صرف نظر نہیں کر سکتے، قومی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کریں گے، عالمی برادری افغان عوام کی مدد کے لیے ٹھوس اقدامات کرے۔ شاہ محمود قریشی کی ڈنمارک کے وزیر خارجہ کے ہمراہ نیوز کانفرنس، دونوں ممالک کا توانائی اور تجارت سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ ہم ہمیشہ کہتے رہے کہ افغان مسئلے کا سیاسی حل ہونا چاہیے۔ بھارت نے خطے میں بگاڑ کا کردار ادا کیا، وادی پنجشیر پر جھوٹے بیانیے کو آگے بڑھانے کے لیے جعلی خبریں گھڑی گئیں۔ روس، پاکستان اور چین افغانستان میں مثبت اور فعال کردار ادا کر سکتے ہیں۔ مشیر قومی سلامتی ڈاکٹر معید یوسف کا روسی ٹی وی کو انٹرویو۔ طالبان عبوری حکومت کا اقوام متحدہ میں سابق افغان حکومت کے مندوب کی معطلی کا مطالبہ، اقوام متحدہ میں افغانستان کی نمائندگی کا حق صرف ہمیں ہے، طالبان ترجمان سہیل شاہین۔ صبح ننگرہار میں ڈینگی سے 30 افراد جاں بحق، 25,000 متاثر، یونیسیف کی جانب سے 32 ٹن امدادی سامان کی پہلی کھیپ کابل پہنچ گئی۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی دہشت گردی جاری، ضلع شوپیاں میں ایک اور نوجوان شہید۔
काबिज भारतीय फौज ने गुज़श्ता माह 14 निहत्ते कश्मीरियों को शहीद, पैलेट गन और आंसू गैस से 32 को शदीद जख्मी किया। काले कवानीन के तहत 125 निहत्ते कश्मीरियों को गिरफ्तार किया गया। कश्मीर मीडिया सर्विस। कोरोना वैक्सीन न लगवाने वालों पर आज से मुल्क भर में बंदिशों का नफाज। रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स, शादी हॉल्स में दाखिले और हवाई सफर पर पाबंदी। मुल्क में कोरोना की शरह 2.8% पर आ गई। 1411 नए केसेस रिपोर्ट, 56 अफराद जाँ बहक। कराची में समुद्री तूफान का खतरा टल गया। शाहीन तूफान मकरान की साहिली पट्टी से गुजरता हुआ मान से टकराएगा। बलोचिस्तान के इलाकों लसबेला और माड़ा, पसनी, गवादर, तुरबत और जिवानी में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। माहीगीरों को 3 अक्टूबर तक समंदर में न जाने की हिदायत। दुनिया की सबसे बड़ी सनती नुमाइश दुबई में शुरू। 200 के करीब ममालिक के सनतकार और बरामद कुनिंदगान ने मसनूआत पेश कर दी। दुनिया भर से तकरीबन 2.5 करोड़ सयाह और सनतकार दुबई आएंगे। ये अच्छा शॉट लगाया, बुलंदो बाला चाहिए होगा। नेशनल T20 में सदरन पंजाब को मुसलसल 5वीं शिकस्त। बलोचिस्तान ने सदरन पंजाब को 8 विकेटों से हरा दिया। सदरन पंजाब ने 9 विकेटों पर 174 रन बनाए। बलोचिस्तान ने 2 विकेटों के नुकसान पर हदफ हासिल कर लिया। जुनैद खान और उमैद आसिफ की 3-3 विकेटें। अब्दुल बंगलजई के 50 रन। दिलचस्प मुकाबले देखिए PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। और पाकिस्तानी कोहपेमा सरबाज खान ने नेपाल की 8,167 मीटर बुलंद दवलागेरी चोटी सर कर ली। 8,000 मीटर से बुलंद 9 चोटियां सर करने वाले पहले पाकिस्तानी कोहपेमा बन गए। मोहम्मद अली सदपारा का 8,000 मीटर से बुलंद 8 चोटियां सर करने का कौमी रिकॉर्ड तोड़ दिया। सरबाज खान दवलागेरी चोटी पर सब्ज हिलारी परचम लहराने वाले पहले पाकिस्तानी हैं। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं नाजिया कमल। मैं हूं सलमा कौसर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। कौन कहता है प्रिंट मीडिया खत्म हो गया? नहीं जनाब, अभी नहीं खत्म हुआ, बल्कि आज भी आवाम की असल आवाज यही है। लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, कराची, पेशावर, मुजफ्फराबाद, सक्खर और हैदराबाद के बाद अब रोजनामा खबरें जुनूबी पंजाब के दिल और दूसरे बड़े शहर भावलपुर से 1 अक्टूबर को इशाअत का बाकायदा आगाज कर रहा है। जनाब जिया शाहिद का विजन और इम्तिनान शाहिद की क़यादत में रोजनामा खबरें भावलपुर 1 अक्टूबर को आपके पास होगा। जहां जुल्म होगा, रोजनामा खबरें उसके सामने खड़ा होगा। जहां जुल्म, वहां खबरें। वेलकम बैक नाज़रीन। खबरनामे के आगाज में आपको आगाह करें कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है, हम अमन के लिए बातचीत पर यकीन रखते हैं। कल अदम TTP को गैर मुसल्लह करने के लिए मुज़ाकरात हो सकते हैं। TRT वर्ल्ड को इंटरव्यू में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मुज़ाकरात ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। इस सिलसिले में अफ़गान तालिबान सालिस का किरदार अदा कर सकते हैं। In fact, I think some of the Pakistani Taliban groups actually want to talk to our government, for some peace, for some reconciliation.
And we are in talks with some of the groups. What we hope is that this will... TTP, are you in talks with the TTP? With some of them, yes. You see, So- there are different groups which form the TTP. Yes, so we are in talks with some of them. So there is some sort of negotiation or talks underway between Pakistan and the Tehreek-e-Taliban Pakistan or some groups of the TTP to lay down their arms. Yes, I do not believe in military solutions. I'm anti-military solutions. So I always believe that, as a politician, political dialogue is the way ahead, which I always believed was the case in Afghanistan. वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि रियासत की पॉलिसियाँ एक मखसूस पस मंज़र में बनती हैं। वज़ीर आज़म ने जो आज उसूल वज़ा किए हैं उनके ऊपर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। अपने वीडियो बयान में उन्होंने कहा कि कलादम TTP के मुख्तलिफ गिरोह हैं। इन गिरोहों में ऐसे लोग भी हैं जो पाकिस्तान के साथ अपनी वफा का अहद निभाना चाहते हैं। हमारा मानना ये है कि ऐसे लोगों को रियासत को ये मौका देना चाहिए कि वो ज़िंदगी के धारे में वापस आ सकें। रियासत पाकिस्तान एक आग और खून के दरिया से होकर निकली है। हमने पाकिस्तान में जहां अलकायदा जैसी दहशतगर्द तंजीम को शिकस्त दी, वहीं हिंदुस्तान की रेशा दवानियों को भी मुकम्मल तौर के ऊपर ख़त्म किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पहले से ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा पुरअज़म खड़ा है। बेशुमार ख़ानदान और बेशुमार लोग जो पाकिस्तान के साथ वफादारी का अहद नहीं निभा सके, वो ये अहद निभाने वापस आना चाहते हैं। बलूचिस्तान में 3000 से ज़्यादा वो लोग जो नाराज़ थे और जो हिंदुस्तान की रेशा दवानियों का शिकार हुए, वो वापस आ चुके हैं। इसी तरीके से तहरीक-ए-तालिबान के मुख्तलिफ गिरोह हैं। उन गिरोहों में ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान के साथ अपने वफा का अहद निभाना चाहते हैं और एक सुलह जो अमन पसंद और आइन को मानकर आगे चलने का पैमान करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को रियासत को ये मौका देना चाहिए कि वो ज़िंदगी के धारे में वापस आ सकें। वज़ीर आज़म साहब ने आज जो असूल वज़ा किए हैं, जिनके ऊपर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, वो यही असूल है कि हम अपने आइन और कानून के दायरे में रहते हुए उन लोगों को जो अपने मखसूस हालात के पेश नज़र पाकिस्तान के रास्ते से जुदा हो गए थे, उनको वापस रास्ते पर ला सकें। वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में इस्लामाबाद में इजलास हुआ, जिसमें अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में शिरकत की और आलमी रहनुमाओं के साथ होने वाली मुलाकातों के बारे में ब्रीफिंग दी। इन मुलाकातों में अफ़गान सूरत हाल और मकबूजा कश्मीर में भारत की जानिब से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की भरपूर तर्जुमानी की गई। इजलास में इज़हार ख़याल करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में देरपा अमन का ख़्वाह है और चाहता है कि अफ़गान अवाम की उमंगों के मुताबिक नुमाइंदा हुकूमत कायम हो। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि आलमी बिरादरी अफ़गानिस्तान की तामीर नौ और इस्तेहकाम में ताउन करे। इस्लामाबाद में डेनमार्क के वज़ीर ख़ारिजा से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि अफ़गानिस्तान में इस्तेहकाम के लिए एक मुस्तहकम सियासी ढांचे की ज़रूरत है। आलमी बिरादरी की जानिब से तामीरी शोबे के तामीरी इक़दामात और मुस्बत पैगाम से मुहाजिरीन का मसला दरपेश नहीं होगा। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख़याल किया। वज़ीर आज़म ने दो तरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि डेनमार्क के साथ अवामी राबतों के फ़रोग़, तिजारत, सरमायाकारी और काबिल तजदीद तवानाई के शोबों में ताउन को वुसअत देना चाहते हैं। डेनमार्क के वज़ीर ख़ारिजा ने 10 बिलियन ट्री मंसूबे की तारीफ़ करते हुए कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए पाकिस्तान आलमी बिरादरी का भरपूर साथ दे रहा है। उन्होंने कहा कि डेनमार्क पाकिस्तान के साथ मुजव्वज़ा ग्रीन पार्टनरशिप एग्रीमेंट के तहत ताउन को फ़रोग़ देना चाहता है। पाकिस्तान और डेनमार्क ने काबिल तजदीद तवानाई और मौसमियाती तब्दीली समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा जेपे कोफो की सरबराही में दोनों मुल्कों के दरमियान इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात में अफ़गानिस्तान समेत खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख़याल किया गया। नाज़रीन, इससे मुतालिक मज़ीद तफसील से भी आपको आगाह करेंगे। भी आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से डेनमार्क की वज़ीर ख़ारजा जेपे कोफो ने रावलपिंडी में मुलाकात की। ISPR के मुताबिक इस मुलाकात में
اجتماع میں دلچسپی اور علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ افغانستان میں انسانی بنیادوں پر تعاون اور شراکت داری بڑھانے پر بھی ملاقات میں گفتگو ہوئی۔ آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان ڈنمارک کے ساتھ تعلقات کو بڑی اہمیت دیتا ہے اور مختلف شعبوں میں کثیر الجہتی تعاون کے فروغ کا خواہاں ہے۔ معزز مہمان نے افغانستان سے انخلا اور ابھرتی ہوئی صورتحال میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ ڈنمارک کے وزیر خارجہ نے پاکستان کے ساتھ دو طرفہ تعاون کے فروغ کے عزم کا بھی اظہار کیا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ ٹیکنالوجی کے اس دور میں آئی ٹی کا شعبہ تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ ہمیں دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے نوجوانوں کو ہنر سکھانے اور ہیومن ریسورس کے فقدان کو ختم کرنا ہوگا۔ اسلام آباد میں ورکنگ پیپر کی تقریب رونمائی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں سرمایہ کاری کی ضرورت ہے۔ 30,000 ہم بچے پروڈیوس کرتے ہیں آئی ٹی کے، اور 25,000 اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ کھپ جائیں۔ انٹرنیشنل مارکیٹ یہ ایک آزاد مارکیٹ ہے، یہ خود ہی کھپے گی، یہ گاہک وہاں بیٹھے بیٹھے سب کچھ دیکھ لے گا۔ بیسک نالج کا تھوڑا سا ان پٹ ڈال کر آپ ان کو اس قابل بنائیں کہ بیسک سافٹ ویئر لکھ سکیں۔ ہمارے پاس یوتھ ہیں، ایچ آر نہیں ہے۔ ہیومن ریسورس کے بغیر آئی ٹی کہاں جائے گا؟ آپ وینچر کیپٹل لے آئیں گے، انہی لوگوں میں کھیلتے رہیں گے جو کر چکے ہیں۔ We need to speed up that wagon with the numbers on the train also. ہمارے 9% ہیں جو ہائر ایجوکیشن میں جاتے ہیں۔ کام کرتے ہوئے بچوں کو وہ ورچوئل یونیورسٹی کے ذریعے ٹرین کر رہے ہیں۔ 1,30,000 میں وہ بیچلرز ڈگری دے رہے ہیں۔ تقریب سے اسپیشل ٹیکنالوجی زون اتھارٹی کے سربراہ عامر ہاشمی اور دوسرے مقررین نے بھی خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ ورکنگ پیپر میں حکومت کے لیے پالیسی سازی سے متعلق سفارشات مرتب کی گئی ہیں۔ انہوں نے جدید دور میں خواتین کو شامل کرنے اور انسانی وسائل کی ترقی پر زور دیا۔ اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے، اور یہاں آپ کو بتائیں وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ایف بی آر کی جانب سے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کا کامیاب اجرا خوش آئند ہے۔ سسٹم سے محصولات میں اضافہ ہوگا اور ملکی معیشت ڈیجیٹلائز ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم سے جعلسازی کا خاتمہ ہوگا اور ایسے اقدامات مؤثر اور شفاف حکومت کی طرف پیش رفت ہیں۔ وزیر اعظم نے ایف بی آر کی طرف سے رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں 1,395 ارب روپے کے محاصل اکٹھے کرنے پر مبارکباد دی ہے۔ ایف بی آر نے پہلی سہ ماہی کے لیے 1,211 ارب روپے کا ہدف مقرر کیا تھا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ اس بات کا بھی مظہر ہے کہ گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں ہماری آمدن میں 38% اضافہ ہوا ہے۔ اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان کو برآمدات میں اضافے سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ نیشنل ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ بورڈ کے اجلاس میں بتایا گیا کہ 6 ارب 20 کروڑ ٹن کے مجموعی ذخائر کے ساتھ کھیوڑا میں نمک کی دوسری بڑی کان ہے۔ ساحلی پٹی کے ساتھ سمندری نمک کے وسیع ذخائر بھی ہیں۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ پاکستان کی سالانہ نمک کی پیداوار 40 لاکھ ٹن ہے اور صرف 3 لاکھ ٹن برآمد کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ معیشت کے استحکام اور روزگار کے مواقع بڑھانے کے لیے حکومت کی توجہ کاروبار دوست پالیسیوں پر مرکوز ہے۔ ویلیو ایڈیشن کے لیے جدید ٹیکنالوجی اپنانا ہوگی۔ انہوں نے ہدایت کی کہ نمک اور ادویہ سازی کے شعبوں میں موجود صلاحیت سے استفادہ کرنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں۔ اور ناظرین، پاکستان اور ڈنمارک نے قابل تجدید توانائی اور موسمیاتی تبدیلی سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور ڈنمارک کے وزیر خارجہ ایپی کوفو کی سربراہی میں دونوں ملکوں کے درمیان اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات میں افغانستان سمیت خطے کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس بارے میں تفصیل سے آگاہ کریں گے امجد علی۔ پاکستان اور ڈنمارک کے درمیان اسلام آباد میں وفود کی سطح پر مذاکرات ہوئے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پاکستان جبکہ وزیر خارجہ جیپو کوفو نے ڈنمارک کی نمائندگی کی۔ مذاکرات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان امریکی سینٹ میں مجوزہ بل کے اثرات سے صرف نظر نہیں کر سکتا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان قومی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کرے گا۔ There's a lot that can be done and we have discussed how we should put in that extra effort to improve bilateral trade and attract more investments into Pakistan. The Green Partnership Agreement signed between Denmark and Pakistan will give us opportunities of greater cooperation in renewable energy, and Denmark has included Pakistan in the Danish energy transition
initiative. डेनमार्क के वजीर खारजा जेपे कोफो ने कहा कि डेनमार्क पाकिस्तान के साथ दोतरफा ताल्लुकात का फरोग चाहता है। पाकिस्तान खित्ते और अफगानिस्तान में इस्तेहकाम के लिए अहम मुल्क है। I once again want to convey my deepest gratitude to Pakistan for assisting with the Danish evacuation effort with rapid, efficient and also substantial support, also in the airport, of course, in Islamabad. This arrangement has been crucial in our evacuation and became a model for a number of countries to follow. We have evacuated more than 1,000 people out of Kabul. प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मुज़ाकरात में दोनों मुल्कों के वफूद ने दोतरफा ताल्लुकात के इस्तेहकाम और बाहमी दिलचस्पी के कसीरुल जहती शोबों में तावन के फ़रोग पर बातचीत की। मुज़ाकरात में अफगानिस्तान और खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इससे पहले जेपे कोफो दफ्तर खारजा पहुंचे तो वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने उनका खैर मकदम किया। दोनों वज़राए खारजा के दरमियान बाज़ाब्ता मुसाफा हुआ। डेनिश वजीर खारजा ने दफ्तर खारजा के सब्ज़जार में यादगारी पौधा भी लगाया। अमजद अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा है कि पूरी दुनिया महंगाई की लपेट में है, जिससे मकामी मंडी भी मुतासिर हो रही है। इस्लामाबाद में वज़ीर ममलिकत इत्तलात फ़ारूक हबीब के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत आम आदमी पर महंगाई के बोझ को कम करने के लिए खुसूसी इक़दामात कर रही है। रिपोर्ट कर रहे हैं हसन तारिक भट्ट। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा कि कोरोना वबा की वजह से खाम तेल की बैनुल-अक़वामी कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ताहम हुकूमत ने टैक्सों में कमी से अवाम को रिलीफ फराहम किया है। ओगरा की जो रिकमेंडेशंस थी, पेट्रोल की प्राइस उन्होंने कहा था 8 रुपए से ज़्यादा कर दें, डीज़ल की को 3.25 रुपए कर दें, तो प्राइम मिनिस्टर ने उसको कम करके पेट्रोल की प्राइस 4 रुपए कर दी, डीज़ल की 2 रुपए कर दी। इससे हुकूमत को 2 अरब रुपए का जो है वो नुकसान हुआ। पेट्रोलियम लेवी है जो कि 2018 में 30 रुपए फी लीटर थी, वो इस वक्त कम होकर 2-2.5 रुपए पे आ गई। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि अक्टूबर से खाने पीने की बुनियादी अशिया पर बराह रास्त सब्सिडी दी जाएगी। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के जरिए कमजोर तबके को आसान कर्जे फराहम किए जाएंगे। वज़ीर ममलिकत इत्तलात और नशरियात फ़ारूक हबीब ने कहा कि आम आदमी की फलाह हुकूमत की अवलीन तरजीह है। ये पहली हुकूमत है जो फूड सिक्योरिटी पर तवज्जो दे रही है। 22 करोड़ एकड़ ज़मीन हमारे मुल्क में मौजूद है, जिसमें से 5 करोड़ एकड़ ज़मीन जिस पे काश्त हो रही है। आज हम इक़दामात ले रहे हैं कि हमारी लाखों एकड़ ज़मीन जो चोलिस्तान की पड़ी है उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है। 10 नए डैम्स जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो बना रहे हैं, जिससे 10,000 मेगावाट बिजली सिस्टम के अंदर आएगी। 1 करोड़ 30 लाख एकड़ ज़मीन मज़ीद उसको जो है वो पानी मुहैया हो सकेगा। वज़ीर ममलिकत ने कहा कि कीमतों में इस्तेहकाम के लिए गिरां फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सिंध में गंदम की कीमत में फ़र्क की वजह पीपल्स पार्टी की नाअहली है। हसन तारिक भट्ट, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मुल्क भर में कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वालों पर आज से बंदिशों का नफाज हो गया है। NCOC और इस्लामाबाद इंतजामिया ने खिलाफ वर्जियों पर मुख्तलिफ तालीमी इदारे, शॉपिंग मॉल्स और गेस्ट हाउस सील कर दिए। तफसील जानिए समीउल्लाह से। मुल्क भर में आज से वैक्सीनेशन ना करवाने वालों पर पाबंदियों का इतलाक हो गया है। NCOC के मुताबिक वैक्सीनेशन ना करवाने वाले अफराद अंदरून और बैरून मुल्क सफर नहीं कर सकेंगे। ऐसे अफराद शादी की तकरीबात, शॉपिंग मॉल्स और रेस्टोरेंट्स में भी दाखिल नहीं हो सकेंगे। गैर वैक्सीन शुदा अफराद को होटल या गेस्ट हाउसेस में रहने की इजाजत भी नहीं होगी, जबकि असातिज़ा भी तालीमी इदारों में काम नहीं कर सकेंगे। वैक्सीनेशन पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए NCOC और जिलाई इंतजामिया की टीमों ने इस्लामाबाद में शॉपिंग मॉल्स, कैश एंड कैरी और बस टर्मिनल्स का दौरा किया और लोगों की वैक्सीनेशन स्टेटस का मुआयना किया। जिलाई इंतजामिया ने G9 सेक्टर में कैश एंड कैरी और F7 सेक्टर में 2 रेस्ट हाउसेस को सील किया, जबकि खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज की। इंतजामिया की जानिब से वैक्सीनेशन ना करवाने वाले अफराद पर जुर्माने भी आयद किए गए। टीम ने फैजाबाद बस टर्मिनल पर गैर वैक्सीन शुदा मुसाफिरों को टिकट जारी करने पर 4 अफराद को हिरासत में भी लिया। NCOC और जिलाई इंतजामिया की टीम ने मौके पर गैर वैक्सीन शुदा लोगों को सिंगल डोज कैंसाइनो वैक्सीन भी लगाई। इस्लामाबाद इंतजामिया ने मुख्तलिफ तालीमी इदारों का दौरा किया और कोरोना SOPs पर अमल दरामद ना करने पर कार्रवाई करते हुए जुर्माने आयद किए। असातिज़ा और दूसरे अमले की वैक्सीनेशन ना करने वाले तालीमी इदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इन्हें सील भी कर दिया गया। इंतजामिया ने 12 साल से जायद उम्र के तालिबे इल्मों की वैक्सीनेशन यकीनी बनाने के लिए इक़दामात करने की भी हदायत की। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। मौसम की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे समंदरी तूफान शाहीन की। अच्छी खबर है कि कराची में समंदरी तूफान का खतरा टल चुका है। शिमाल मशरिक बहिरा अरब में समंदरी तूफान शाहीन से कराची शहर को अब कोई खतरा नहीं है। तूफान कराची के जुनूब मगरिब से 400 किलोमीटर की दूरी पर है, जो मगरिब की जानिब बढ़ रहा है। नवाब अली शाह की रिपोर्ट देखिए। शिमाल मशरकी बहरे अरब में बनने वाला डिप्रेशन डीप डिप्रेशन में तब्दील होकर तूफान बन गया, जिससे शाहीन का नाम दिया गया है। ये तूफान मकरान की साहिली पट्टी से गुजरता हुआ ओमान से टकराएगा, जबकि समंदरी तूफान से कराची को अब कोई खतरा नहीं। ताहम इसके असरात के बायस कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। कराची में और बाकी सिंध में भी स्कैटर्ड लाइट टू मॉडरेट रेन है, और अलबत्ता हवाएं जैसे तेज़ चल रही हैं वो आज के दिन चलती रहेंगी, और कल भी लाइट रेन ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, और उसके बाद फिर मौसम नॉर्मल हो जाएगा। अलबत्ता बलूचिस्तान के साहिली शहर हैं जो औरमारा, पसनी, गवादर, जीवानी और ऊपर लसबेला और फिर तुरबत, इन एरियाज़ में तेज़ बारिश का इम्कान मौजूद है। महकमा मौसमियात के मुताबिक समंदर में 3 अक्टूबर तक तुगयानी की सूरत हाल रहेगी, और माहीगीरों को 3 अक्टूबर तक समंदर में ना जाने की हिदायत की गई है। उधर खीरथर के पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश से गाज डैम ओवरफ्लो हो गया है, जिससे सैलाबी रेला निकलने के बायस मुतादिद गांव भी ज़ेरे आब आ गए हैं। पीटीवी न्यूज़ के लिए कराची से नवाब अली शाह। आगे बढ़ें और आपको आगाह करें कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान बालाई वस्ती पंजाब, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और ज़ेरी बलूचिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश की भी तवक्को है। रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील कुछ यूँ है। सिब्बी, बहावलपुर, बहावलनगर, DI खान और नूरपुर थल में 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अभी आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने हिदायत की है रावलपिंडी में नाला लई एक्सप्रेसवे मंसूबे को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस्लामाबाद में जायजा इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि इस मंसूबे से मुकामी लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे और तिजारती सरगर्मियाँ शुरू होंगी। ब्रीफिंग में बताया गया कि 17 किलोमीटर नाला लई मनसूबा IJP रोड को GT रोड से मिलाने के लिए मुतबादिल रास्ता मुहैया करेगा। मुआविन खुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर ने वज़ीर आज़म इमरान खान से इस्लामाबाद में मुलाकात की और नई मॉडल पनागाहों के मंसूबे पर होने वाली पेशरफ पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि पनागाहों में सहूलियात की फराहमी पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ की जाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत मॉडल पनागाहों की तामीर से मिसाल कायम कर रही है। मुखय्यर हजरात और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी इस काम में हमारे शाना बशाना होंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत पनागाहों के अमले को बैनुल अक़वामी मयार की तरबियत फराहम कर रही है। पनागाहों के साथ एहसास वन विंडो सेंटर से भी मुस्तहिक अफराद को सहूलियात तक आसान रसाई मुमकिन हो सकेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मुल्क की तरक्की में नौजवानों के अहम किरदार के मोतरफ हैं। मुल्क में मेरिट की बालादस्ती को यकीनी बनाया जा रहा है। उन्होंने ये बात इस्लामाबाद में नेशनल यूथ काउंसिल के अरकान से गुफ्तगू में कही। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान वसाइल से माला माल है। हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत के ज़रिए हमें अपनी बरामदात में इजाफा करना है। उन्होंने कहा कि नौजवान हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करें और मेहनत को अपना शिआर बनाएं। इस मौके पर मुआविन खुसूसी उस्मान डार ने यूथ काउंसिल और कामयाब जवान प्रोग्राम के इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म को बताया गया कि कारोबारी सरगर्मियों के लिए नौजवानों में अब तक 23 अरब रुपए तकसीम किए जा चुके हैं, जिससे 33,000 मुलाजमतों के मौके पैदा हुए हैं। खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। माशाल्लाह, बहू के चेहरे पे तो बहुत रौनक है। फिर से खुशखबरी है क्या? ये रौनक खुशखबरी की नहीं। क्या मतलब? समझदारी की है। कैसी समझदारी? बहू सेहतमंद रहे, इसलिए मैंने इसको समझाया कि बच्चों की पैदाइश में कम से कम 3 साल का वक्फा होना चाहिए, ताकि कुंबा तवाजुन से बढ़े और आने वाले बच्चों की सही परवरिश हो। समझदारी की बात कुनबा बढ़ाएं तवाजुन के साथ। महकमा बहबूद आबादी, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा।
ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएं, सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि तेज तर समाजी और इक्तिसादी तरक्की के लिए आला तालीम का फ़रोग़ वक्त की ज़रूरत है। हाइब्रिड तालीम के हजम में इजाफा हुनरमंद पेशावर अफराद की तादाद बढ़ाने में मुआविन साबित होगा। फाउंडेशन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से मुतालिक ब्रीफिंग के मौके पर सदर मुमलिकत ने कहा कि हायर एजुकेशन कमीशन तालीमी इदारों में इंसदाद मनशियात और खुसूसी तलबा की फलाह के लिए पॉलिसियों को नाफिज करे। उन्होंने कहा कि तेज़ी से बदलती दुनिया के चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए मसनूई ज़हानत और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी उभरती टेक्नोलॉजीज़ को अपनाना होगा। फाउंडेशन यूनिवर्सिटी के सदर वकार अहमद मलिक ने ब्रीफिंग में बताया, इदारे में नई पॉलिसी के तहत खुसूसी तलबा के लिए ट्यूशन, हॉस्टल और यूटिलिटी फीस माफ़ कर दी गई है। यूनिवर्सिटी इंडोमेंट फंड के जरिए मेरिट पर वज़ाइफ भी दिए जा रहे हैं। इस्लामाबाद में ऑडिटर जनरल पाकिस्तान मोहम्मद अजमल गोंदल से गुफ्तगू करते हुए सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि इदारों में माली बेज़ाब्तगियों को रोकने के लिए हुकूमती इदारों में माली डिसिप्लिन यकीनी बनाना होगा। उन्होंने कहा कि करप्शन के खात्मे और मालियाती नज़्म व नस्क यकीनी बनाने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर मबनी ऑडिट को अपनाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि रिटायर्ड सरकारी मुलाजिमीन को पेंशन की वसूली में मज़ीद सहूलत दी जाए। ऑडिटर जनरल ने सदर मुमलिकत को हुकूमती शफ़ाफियत और एहतसाब यकीनी बनाने में इदारे के किरदार पर ब्रीफिंग दी। और नाज़रीन, मुल्क की तारीख में पहली बार नमाज जुम्मा का खुतबा और नमाज बराह रास्त नशर की गई। ऐवान सदर की जामिया मस्जिद से पाकिस्तान टेलीविज़न ने नमाज जुम्मा बराह रास्त नशर की। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी नमाज जुम्मा ऐवान सदर में अदा की। नमाज जुम्मा के खुतबे में इस बात पर जोर दिया गया कि मोमिन के क़ौल फ़ेल में तज़ाद नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला ने रियाकारी को सख्त नापसंद फरमाया है। तमाम इबादात अल्लाह पाक की खुशनुदी के हुसूल के लिए की जाएँ। हमसाये के हुकूक का ख़ास ख्याल रखा जाए, खुश अखलाक़ी के साथ पेश आएँ और लोगों की परेशानियों का मदावा करें। यतीमों की किफ़ालत और कमज़ोर तबके की फलाह हमारी तरजीहात होनी चाहिए और यही रियासत मदीना की रूह है। इस मौके पर पाकिस्तान की नज़रियाती और जुग्राफियाई हदूद के तहफ़्फ़ुज़ और अवाम की खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएँ की गईं। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल क़िबला अयाज़ ने अच्छे मौजू पर खुतबा दिया। अपने ट्वीट में सदर मुमलिकत ने कहा कि मैंने 2 साल कबल कौंसिल से दरख्वास्त की थी कि ख़तीबों के लिए कम अज़ कम 52 समाजी मौज़ूआत मसलन सच्चाई, सदका व खैरात, हमदर्दी वगैरह शाया करें। अवाम की रहनुमाई के लिए ऐवान सदर से हर जुमा 15 मिनट के लिए बेहतरीन मुकर्ररीन खुतबा देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार खुतबा जुमा ऐवान सदर की जामिया मस्जिद से बराह रास्त नशर किया जा रहा है, जो रियासत मदीना के मॉडल की जानिब एक अहम कदम है। मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ ने कहा है कि मुस्तहकम अफगानिस्तान खित्ते में अमन के लिए नागुज़ीर है। पाकिस्तान एक मुस्तहकम और पुरअमन अफगानिस्तान देखना चाहता है। रूसी टीवी चैनल को इंटरव्यू में मुईद यूसुफ ने कहा कि अफगानिस्तान गुज़श्ता 4 दहाइयों से हालत जंग में है। पाकिस्तान माजी में 50 लाख से ज़ायद महाजरीन की मेज़बानी कर चुका है। पाकिस्तान ने हमेशा कहा है कि अफगानिस्तान का सियासी हल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तालिबान की जानिब से नहीं बल्कि खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए बात कर रहा है। उन्होंने कहा कि रूस, पाकिस्तान और चीन अफगानिस्तान में मुस्बत और फ़ाल किरदार अदा कर सकते हैं। मुईद यूसुफ ने कहा कि भारत ने हमेशा खित्ते में बिगाड़ पैदा करने के लिए किरदार अदा किया। भारत ने वादी पंजशेर पर अपने झूठे बयानिए को आगे बढ़ाने के लिए झूठी खबरों का सहारा लिया। तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा में अफगानिस्तान की नुमाइंदगी का हक सिर्फ तालिबान उबूरी हुकूमत का है। अपने एक बयान में उन्होंने मुतालबा किया कि अक़वाम मुत्तहिदा मुस्तकिल मंदूब की पोजीशन उबूरी हुकूमत को दे, क्योंकि अशरफ गनी हुकूमत ख़त्म हो चुकी है और मौजूदा हुकूमत ही अवाम की नुमाइंदगी करती है। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा साबिक़ हुकूमत की मंदूब गुलाम इसहाक ज़ाई की नुमाइंदगी को मुअत्तल करे। अफगानिस्तान 19 नवंबर 1946 को अक़वाम मुत्तहिदा का मुस्तकिल रुकन बना था। मुकामी सियासी मुफक्किरीन का ख्याल है कि जब तक तालिबान हुकूमत को आलमी दुनिया तस्लीम नहीं करती, तब तक अक़वाम मुत्तहिदा में नुमाइंदगी नहीं मिल सकती। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ की जानिब से 32 टन इमदादी सामान की पहली खेप अफगानिस्तान पहुँच गई है। इमदादी सामान में दवाइयाँ, जराही के आलात, माँ और बच्चों की निगहदाश्त की अद्वियात और इब्तदाई तिब्बी सामान शामिल है। यूनिसेफ नुमाइंदा के मुताबिक ये सामान 1 लाख अफराद को आइंदा 3 माह के लिए काफ़ी होगा। अफगानिस्तान में जंगी हालात की वजह से अद्वियात खुसूसन ज़िचकी और माँ की सेहत के हवाले से दवाइयाँ नापैद हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि इदारा इमदादी सामान मुहैया करने का सिलसिला जारी रखेगा।
افغانستان کے صوبہ ننگرہار میں ڈینگی کی وبا پھوٹ پڑی ہے، جس کے باعث 30 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ جلال آباد سمیت دیگر علاقوں میں گزشتہ ایک ماہ کے دوران 25,000 سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں۔ صوبے میں ادویات کی شدید کمی، محدود طبی عملے اور بیشتر ہسپتال بند ہونے کی وجہ سے صورتحال مزید تشویشناک ہے۔ وبا کے تیزی سے پھیلاؤ کے خدشات اور طبی سہولیات کی عدم دستیابی کے باعث مقامی افراد نے افغان عبوری حکومت اور بین الاقوامی اداروں سے فوری مدد کی اپیل کی ہے۔ افغانستان میں بے گھر ہونے والے افراد انتہائی قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ ملک میں اندرونی طور پر بے گھر ہونے والے خاندان فلاحی تنظیموں کے تعاون سے اب شمالی صوبوں میں اپنے گھروں کو واپس لوٹ رہے ہیں۔ شہر نوپاک میں اب بھی ہزاروں خاندان کھلے میدان میں کیمپوں میں زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ فلاحی تنظیم کے تعاون سے فراہم کی جانے والی بسوں میں اب تک 1000 سے زائد خاندان قندوز کے علاقوں میں واپس اپنے گھروں میں جا چکے ہیں۔ کھانے پینے سمیت دیگر ضروری اشیاء کی خریداری کے لیے انہیں 10,000 افغانی رقم بھی دی گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق رواں سال میں اب تک 6,34,800 افغان بے گھر ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے کے مطابق 2020 تک 29 لاکھ افغان شہری اپنے گھر بار چھوڑ چکے ہیں۔ آگے بڑھیں گے اور کچھ بات کریں گے مقبوضہ وادی کشمیر کا، جہاں بھارتی بربریت کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں ضلع شوپیاں میں ایک اور نوجوان کو شہید کر دیا گیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق قابض بھارتی فوج نے ستمبر میں 14 نہتے کشمیریوں کو شہید کیا، جبکہ پیلٹ گن کے استعمال اور آنسو گیس سے 32 شہری شدید زخمی ہوئے۔ گزشتہ ماہ مقبوضہ وادی میں نافذ کالے قوانین کے تحت 125 نہتے کشمیریوں کو گرفتار کیا گیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے مقبوضہ علاقے میں قتل عام، خواتین کی بے حرمتی، جبری گرفتاریوں اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر شدید تشویش ظاہر کی ہے۔ سری نگر سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ بھارت کشمیریوں کی منصفانہ جدوجہد کو دبانے کے لیے نسل کشی، جغرافیائی حیثیت تبدیل کرنے سمیت کئی اقدامات کر رہا ہے جو قابل مذمت ہیں۔ جموں کشمیر میس موومنٹ نے اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں ریاستی دہشت گردی رکوانے کے لیے بھارت پر دباؤ بڑھائیں۔ کپواڑہ کے علاقے مشہل میں اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انڈین نیشنل کانگریس کے صدر غلام احمد میر نے کہا کہ مقبوضہ علاقے میں صورتحال ابتر ہے۔ بھارتی وزراء کے دوروں کا مقصد دنیا پر یہ ظاہر کرنا ہے کہ خطے میں سب کچھ ٹھیک ہے، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ کشمیر انسٹی ٹیوٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز کے چیئرمین الطاف حسین وانی نے جنیوا میں انسانی حقوق کونسل اجلاس کے موقع پر منعقدہ مباحثے میں ویڈیو لنک کے ذریعے حصہ لیتے ہوئے زور دیا کہ عالمی برادری بھارتی بربریت پر اپنی خاموشی توڑے۔ کویت کے اراکین اسمبلی نے مشترکہ بیان میں بھارت میں مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں اور اسلامی اداروں پر زور دیا کہ وہ فوری طور پر مسلمانوں کی سلامتی کو یقینی بنانے میں مدد کریں۔ اسلام آباد میں کشمیر سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر فخر امام نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے دنیا کے ہر فورم پر کشمیریوں کا سفیر ہونے کا حق ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت غیر قانونی اقدامات سے مقبوضہ جموں کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 5 اگست 2019 کے بھارتی غیر قانونی اقدام سے ایک بار پھر مسئلہ کشمیر دنیا کے سامنے اجاگر ہوا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ کشمیر کی جدوجہد کامیابی سے ضرور ہمکنار ہوگی۔ ادھر قومی اسمبلی کو بتایا گیا کہ پشاور موڑ سے نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ تک میٹرو بس منصوبہ 23 مارچ 2022 تک مکمل کر لیا جائے گا۔ اس اجلاس کی تفصیل سے آگاہ کریں گے عمران منصب۔ قومی اسمبلی کا اجلاس ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری کی صدارت میں پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس کے وقفہ سوالات میں پارلیمانی سیکرٹری داخلہ شوکت علی نے بتایا کہ میٹرو بس منصوبے کے لیے موجودہ بجٹ میں 1 ارب روپے بھی رکھے گئے ہیں اور اس کے لیے میٹرو بسیں بھی جلد پہنچ جائیں گی۔ سمندر پار پاکستانیوں کے پارلیمانی سیکرٹری صاحبزادہ سبقت اللہ نے بتایا کہ حکومت روزگار کی غرض سے بیرون ملک جانے والے افراد کی فنی تربیت پر بھرپور توجہ دے رہی ہے۔ پاکستانیوں کے مسائل کے حل کے لیے پروٹیکٹر آفیسرز کی تعداد میں اضافہ کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے باقاعدہ ایک میکینزم تشکیل دیا گیا ہے۔ ایوان میں پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے سے متعلق اپوزیشن کے احتجاج پر پارلیمانی امور کی وزیر مملکت علی محمد خان نے کہا کہ اپوزیشن ارکان کو احتجاج کا حق حاصل ہے۔ حکومت کے احتساب کا فورم ہی پارلیمان ہے، لیکن یہ ایسی اپوزیشن ہے جو ہر روز قورم کی نشاندہی کرتی ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ عمران منصب خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ سینیٹ کو بتایا گیا کہ مردم شماری آئندہ انتخابات سے قبل ہوگی۔ اس مقصد کے لیے تمام وسائل فراہم کیے جائیں گے۔ چیئرمین صادق سنجرانی کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں وزیر خزانہ شوکت ترین نے کہا کہ مردم شماری کے پہلے مرحلے کے لیے رواں مالی سال میں 5 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں مل کر اخراجات برداشت کریں گی۔ وفاقی وزیر سائنس و ٹیکنالوجی شبلی فراز نے کہا کہ کورونا کے آغاز میں پاکستان کو طبی سامان کی کمی کا سامنا تھا،
इस शोबे की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दी गई। वेंटिलेटर समेत दूसरे आलात मुकामी सतह पर तैयार किए जा रहे हैं। तवज्जो दिलाओ नोटिस पर वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने कहा कि 1800 मुलाजिमीन की डिग्रियां जाली पाई गईं। जाली लाइसेंस के हामिल पायलट्स को नौकरियों से बर्खास्त कर दिया गया। वजीर ममलिकत पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान ने कहा कि गुज़िश्ता अदवार में स्टील मिल को तबाह कर दिया गया। इदारे का कुल खसारा और वाजिबात 67.1 अरब रुपए हैं। मुशीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर अवान ने बताया कि चावल की बरामद में 7% इजाफा हुआ है। बरामदात में इजाफे के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। नुक्ता एतराज़ पर कायदे ऐवान डॉक्टर शहजाद वसीम ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफा बैनुल-अक़वामी मार्केट में कीमतों के इजाफे के बायस किया गया है। अपोजिशन इस मसले पर सियासत ना चमकाए। अपोजिशन अरकान का मौक़िफ़ था कि पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे से आम आदमी मुतासर होगा। हुकूमत महंगाई पर काबू पाने के लिए हिकमत अमली वज़ा करे। सेनेट का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। चीन के कौमी दिन के हवाले से इस्लामाबाद में तकरीब हुई। चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी समेत मुख्तलिफ शख्सियात ने केक काटने की तकरीब में शिरकत की। चेयरमैन सेनेट ने चीन के सफीर नोंग रोंग को कौमी दिन की मुबारकबाद दी। चीन की तरक्की में कम्युनिस्ट पार्टी के अहम किरदार का जिक्र करते हुए सादिक संजरानी ने कहा कि ठोस पॉलिसियों से इक्तसादी मुआशी तरक्की और गुर्बत में कमी हुई। उन्होंने कहा कि सीपैक की बदौलत दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को नई जहत मिली है। इन मंसूबों की तकमील से इलाकाई तरक्की का नया दौर शुरू होगा। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और मजमूई मुआशी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। स्पीकर असद कैसर ने कहा कि हुकूमत तमाम सियासी पार्टियों की मशावरत से कबायली अजला के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करना चाहती है। इस मकसद के लिए कौमी और पार्लिमानी सतह पर सेमिनार्स का इनेकाद किया जाएगा। गवर्नर शाह फरमान ने कहा कि सूबाई हुकूमत कबायली अजला की तामीर व तरक्की यकीनी बनाने के लिए तमाम वसाइल में रोएकार लाएगी। वज़ीर ममलिकत इत्तलात फ़ारूक हबीब ने कहा है कि मुआशी बहाली के लिए हुकूमत ने हंगामी बुनियादों पर इक़दामात किए हैं। फैसलाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना के दौरान पसमानदा तबके के तहफ़्फ़ुज़ के साथ कारोबारी बरादरी को भी रिलीफ दिया है। तफसील हाफिज़ मोहम्मद अली आबिद से। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री की तकरीब से खिताब करते हुए इत्तलात और नशरियात के वज़ीर मुमलिकत मियां फ़ारूक हबीब ने कहा कि हुकूमत छोटे ताजरों और स्मॉल इंडस्ट्री की तरक्की के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दामात कर रही है। उन्होंने कहा कि SMEs के लिए आसान शराइत पर कर्जों की स्कीम ला रहे हैं और अब छोटे ताजरों को किसी किस्म की कोई चीज़ गिरवी नहीं रखना पड़ेगी। वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि कोरोना वबा के दौरान दुनिया भर की मईशत मुतासर हुई और इस दौरान भी पाकिस्तान की मईशत ने 4.5% ग्रोथ की। SMEs पॉलिसीज़ के ज़रिए हम सहूलत देना चाहते हैं अपने छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी को। आने वाली जो पॉलिसी है जो इंशाल्लाह आइंदा 1 माह के अंदर हम अप्रूव करेंगे स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर, ये उसका हिस्सा है। वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि कम आमदन वाले अफराद को घर बनाने के लिए 20 साल की आसान अक़सात पर कर्जे दे रहे हैं। इन घरों के लिए 160 अरब रुपए की दरखास्तें वसूल हुई हैं, जबकि बैंक 16 अरब रुपए लोगों को दे चुके हैं। वज़ीर मुमलिकत मियां फ़ारूक हबीब ने कहा कि इंसाफ सेहत कार्ड के लिए पंजाब हुकूमत ने 60 अरब रुपए मुख्तस किए हैं और इस साल 31 दिसंबर तक पंजाब भर के तमाम खानदानों को हेल्थ कार्ड की सहूलत फराहम कर दी जाएगी। हाफिज़ मोहम्मद अली आबिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, फैसलाबाद। वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर की सदारत में इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में सीपैक मुश्तरका ताउन कमेटी के फैसलों की रोशनी में साइंस और टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों से मुतालिक नए तश्कील शुदा वर्किंग ग्रुप्स का जायजा लिया गया। वफाकी वज़ीर शिबली फराज ने कहा कि दोनों मुल्कों की मुश्तरका कोशिशों से साइंस और टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस को मईशत की तरक्की को तेज़ करने और शहरियों के मसाइल को हल करने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक ने कहा कि IT पाकिस्तान का मुस्तकबिल है और ये शोबा अब चीन के साथ तकनीकी ताउन के ज़रिए मज़ीद तरक्की और तौसी करेगा। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने कहा है कि सऊदी अरब के साथ माहाना $15 करोड़ की मौखर अदायगी पर तेल के हुसूल के मामला तय पा गए हैं। उन्होंने कहा कि इक्तसादी तरक्की की शरह को 8% और टैक्स वसूली को GDP के तनासुब से 20% तक ले जाना होगा, जिसके लिए जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल में लाया जा रहा है। तफसील जानिए राना इफ्तिखार अहमद से।
جہلم میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے وزیر خزانہ شوکت ترین نے کہا کہ سعودی عرب پاکستان کو تیل کی خریداری کے لیے 2 سال میں 3 ارب 60 کروڑ ڈالر دے گا۔ اس سے قبل سگریٹ کی پیداوار کی نگرانی کے لیے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے ٹیکس چوری روکنے میں مدد ملے گی۔ We'll use technology to broaden the tax base and also to get more taxes from the retailers and supply chains. Track and trace is a very important step towards increasing the tax to GDP. چیئرمین ایف بی آر ڈاکٹر محمد اشفاق نے کہا کہ تمباکو کے علاوہ چینی، کھاد اور سیمنٹ کے شعبوں میں بھی جلد ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کی تنصیب کی جائے گی۔ پی ٹی سی کے عہدیداروں ظفر مسعود، علی اکبر اور عمر جعفر نے کہا کہ تمباکو پر ٹیکس وصولی چیلنج تھا، اس شعبے میں ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کی تنصیب اہم اقدام ہے۔ 5 بڑے شعبوں میں سے پہلے مرحلے میں سگریٹ کی پیداوار پر ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم سے نگرانی کا آغاز کر دیا گیا ہے، جس سے ریونیو میں یقینی طور پر اضافہ ہوگا۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، جہلم۔ پاکستان کا سرکاری ٹیلی ویژن نیٹ ورک جو گزشتہ کئی برسوں سے مسلسل خسارے کا سامنا کر رہا تھا، وزیر اعظم عمران خان کی مثبت پالیسیوں کے نتیجے میں اربوں روپے کا منافع کمانے لگا ہے۔ تفصیل بتا رہی ہیں ہما اقبال۔ ملک میں الیکٹرانک میڈیا کا سب سے معتبر ادارہ پاکستان ٹیلی ویژن ایک طویل عرصے خسارے کے بعد اب 1.3 ارب روپے منافع کما رہا ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن جو قومی نشریاتی ادارہ ہے، گزشتہ کئی سال سے انحطاط کا شکار رہا ہے۔ جب موجودہ انتظامیہ نے چارٹ سنبھالا تو خسارہ بہت بڑھ چکا تھا، لیکن وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین اور ایم ڈی پی ٹی وی عامر منظور کی قیادت میں وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کے مطابق انتظامیہ کی متحرک اور جدت پر مبنی پالیسیوں کی بدولت مختصر عرصے میں پی ٹی وی منافع بخش ادارہ بن چکا ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن میں بہترین منصوبہ بندی کے ساتھ ساتھ پروگرامنگ میں بھی بہتری لائی گئی اور پائیدار کوششوں کی بدولت پی ٹی وی کی پیشکش کا انداز بھی بدلا۔ پاکستان ٹیلی ویژن کی پیشکش میں نظر آنے والی تبدیلی ادارے میں تکنیکی بہتری کی عکاس ہے۔ ورچوئل سیٹ کی ٹیکنالوجی پی ٹی وی کی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن کو عصر حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے ایچ ڈی پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ خبروں کے شعبے میں نہ صرف مقداری لحاظ سے تبدیلی آئی ہے، بلکہ پاکستان ٹیلی ویژن اسلام آباد اور دیگر سینٹر سے پیشکش کا انداز بھی بدلا ہے۔ باہمی تعاون کی بنیاد پر غیر ملکی ٹی وی چینلز کے اشتراک کے ساتھ پروڈکشن بھی کی جا رہی ہے، جو باہمی تعاون کو مستحکم بنانے میں معاون ہوگی۔ متعدد دستاویزی فلموں کی اثر نو ترتیب اور اردو میں ڈبنگ کی گئی۔ ترکی کے مشہور ڈرامے ارطغرل کے باعث ادارے کو بے پناہ مالی استحکام ملا۔ پاکستان ٹیلی ویژن نے غیر ملکی ایجنسیوں کو سیٹلائٹ کی سہولت مہیا کی ہے، جس سے کئی ملین امریکی ڈالر آمدن ہوئی۔ پی ٹی وی سپورٹس بھی انتہائی منافع بخش اور آمدن کا اہم ذریعہ بنا ہے۔ موجودہ حکومت میں پروگرامز کی تشہیر کا انداز پوری طرح بدل دیا گیا۔ مارکیٹنگ کے لیے بھی متحرک حکمت عملی بنائی گئی۔ اشتہارات کی مد میں آمدن میں اضافہ ہوا اور خسارہ منافع میں بدل گیا۔ موجودہ دور میں وقت کے ساتھ ساتھ کوریج کا دائرہ بڑھ رہا ہے۔ ناظرین کی تعداد اور نشریات کا دورانیہ بڑھنے سے بزنس کے حصول میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آج پی ٹی وی کا ہر نیا آئیڈیا نئی اختراع پر مبنی ہے، جو جدت کی جانب ایک اور اہم قدم ہے، جو اضافی آمدن کے حصول کا باعث بھی بن رہا ہے۔ ہما اقبال، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں، سری لنکا کی خواتین کرکٹ ٹیم پاکستان کا دورہ کر رہی ہے۔ اکتوبر میں پاکستان کا دورہ کرے گی۔ سری لنکا کی ویمنز کرکٹ ٹیم پاکستان کا دورہ کر رہی ہے اسی مہینے، اور سری لنکا کی ٹیم پاکستان میں 3 میچز کی 1 ڈے سیریز کھیلے گی، اور توقع کی جا رہی ہے کہ سری لنکن ویمنز کرکٹ ٹیم 15 اکتوبر کو پاکستان پہنچے گی۔ اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں، ہمارے نمائندے ذیشان قیوم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ذیشان، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا، سری لنکن ویمنز کرکٹ ٹیم کب پاکستان پہنچ رہی ہے؟ جی بالکل، ایک ایسے وقت میں جب انٹرنیشنل ٹیمیں جو ہیں وہ پاکستان میں اس وقت دورہ نہیں کر رہی تھی اور ہم اپنے ہی کرکٹ سے جو ہے اپنے میدان آباد کر رہے ہیں، تو ایک بڑی اچھی خبر جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے کہ سری لنکا کی جو ویمن کرکٹ ٹیم ہے وہ پاکستان کا اسی مہینے دورہ کرے گی، اور بہت زیادہ امکانات ہیں سری لنکا کی ویمن کرکٹ ٹیم کے دورہ پاکستان کے۔ وہ 3 ون ڈے میچز کی سیریز کھیلنے کے لیے پاکستان میں آئیں گی، اور ایسے وقت میں جو ہے ہمیشہ سری لنکا نے ہی پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ جب بھی پاکستان مشکل وقت میں آیا ہے، سری
श्रीलंका की वुमेन क्रिकेट टीम के जो दौरा पाकिस्तान है उसका जो बाज़ाब्ता ऐलान है वो तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करेगा, लेकिन जो हमें रिपोर्ट्स मिली है उसमें यही कहा जा रहा है कि श्रीलंका की जो टीम है वुमेन क्रिकेट वो 15 अक्टूबर को पाकिस्तान का दौरा करेंगी। इसके बाद वो तकरीबन 7 रोज़ का यहाँ पर जो है वो आइसोलेशन में रहेंगी। उसके बाद वो एक प्रैक्टिस मैचेस भी खेलेंगी और 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ के जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के साथ खेलते हुए 29 अक्टूबर तक जो है वो अपना यहाँ पर दौरा करेंगी। और ये अगर सीरीज़ तय हो जाती है, इसके हवाले से दोनों बोर्ड्स के दरमियान बातचीत जारी है। अगर ये सीरीज़ तय हो जाती है तो ये पहली मरतबा होगा कि श्रीलंका की जो खवातीन क्रिकेट टीम है वो पाकिस्तान में 2 तरफा सीरीज़ जो है वो खेलने आ रही है। और इस सीरीज़ का बेसिकली जो मकसद है वो आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप क्वालिफायर की तैयारी करना है, जो कि 21 नवंबर से 5 दिसंबर तक जिम्बाब्वे में खेला जाएगा। बहुत शुक्रिया ज़िशान क़य्यूम, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। श्रीलंकन वुमेन्स क्रिकेट टीम इसी महीने पाकिस्तान का दौरा कर रही है और वो पाकिस्तान में 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ खेलेंगे। खेलों की खबरों में मजीद आपको बताएं, नेशनल T20 में सदर्न पंजाब को मुसलसल 5वीं शिकस्त। इवेंट के 13वें मैच में बलूचिस्तान ने सदर्न पंजाब को 8 विकेटों से हरा दिया। मैच PTV स्पोर्ट्स पर बरह रास्त दिखाया गया। पिंडी स्टेडियम में खेले गए मैच में सदर्न पंजाब ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 176 रन बनाए। सोहेब मकसूद ने मुसलसल दूसरी निसफ सेंचुरी स्कोर की। उन्होंने 34 गेंदों पर 54 रन बनाए, जिसमें 2 छक्के और 6 चौके शामिल थे। हसन खान ने 28, खुशदिल शाह और आमिर जामी ने 25-25 रन स्कोर किए। बलूचिस्तान की जानिब से जुनैद खान और उमैद आसिफ ने 3-3 विकेटें अपने नाम की। जवाब में बलूचिस्तान ने 175 रन का हदफ 18.4 ओवर्स में 2 विकेटों पर हासिल कर लिया। ओपनर्स अब्दुल्ला शफीक और अब्दुल बंगलजई ने टीम को 84 रन का आगाज दिया। अब्दुल बंगलजई ने निसफ सेंचुरी स्कोर की और 50 रन बनाकर आउट हुए। अब्दुल्ला शफीक ने 44 रन बनाए। तीसरे नंबर पर बैटिंग करने वाले हारिस सुहेल ने 47 रन बनाए और नाकाबिल शिकस्त रहे। नेशनल T20 में सदर्न पंजाब और बलूचिस्तान के दरमियान मैच के दौरान बलूचिस्तान के कप्तान इमामुल हक इंजरी का शिकार हो गए। इमामुल हक फील्डिंग के दौरान बाउंड्री बोर्ड से टकराए, जिसके बाद उन्हें पसलियों में तकलीफ शुरू हुई। तकलीफ की नौयत ज़्यादा होने पर इमामुल हक को स्ट्रेचर पर ग्राउंड से बाहर ले जाया गया। कोशिश इनकी 100% थी, लेकिन सोहेब मकसूद ग्रेट टाइमर ऑफ द बॉल। पाकिस्तानी को पैमार सरबाज खान ने एक और एजाज़ अपने नाम कर लिया है। सरबाज खान ने नेपाल की 8167 मीटर बुलंद दौला गहरी चोटी सर कर ली है। वो 8000 मीटर से बुलंद 9 चोटियां सर करने वाले पहले पाकिस्तानी कोहपैमा बन गए हैं। सरबाज खान ने मोहम्मद अली सदपारा का 8000 मीटर से बुलंद 8 चोटियां सर करने का कौमी रिकॉर्ड तोड़ दिया। सरबाज खान दाउला गहरी चोटी पर सबसे लाली परचम बुलंद करने वाले पहले पाकिस्तानी भी हैं। इससे कबल डांगा पर्वत, K2, लॉटसे, ब्रॉड पीक, मनासलो, अन्नापूर्णा, माउंट एवरेस्ट और G2 भी सर कर चुके हैं। खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। नाज़िया कंवल और सलमा कौसर को इजाजत दीजिए। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।